خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے ہمارے سی1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے۔ ڈی پی او جھنگ حسن اسد الوی کی ہدایات پر جھنگ پولیس کا امن و امان کے قیام کے لیے فلیگ مارچ کا مقصد شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے۔ ڈی پی او جھنگ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ حسن اسد الوی کی ہدایات پر بسلسلہ یوم شہادت حضرت علی 21 رمضان المبارک امن و امان اور سیکیورٹی کے حوالے سے جھنگ پولیس نے فلیگ مارچ کیا۔ فلیگ مارچ کا آغاز عثمان منیر سیفی ایس پی انویسٹیگیشن جھنگ کی زیر قیادت پولیس لائنز جھنگ سے کیا گیا۔ فلیگ مارچ میں ڈی ایس پی ایس ڈی پی او سٹی صدر سرکل، ڈی ایس پی ٹریفک جھنگ، جملہ ایس ایچ اوز سٹی سرکل، ایلیٹ فورس شاہین اسکواڈ اور ریسکیو شریک ہوئے۔ فلیگ مارچ پولیس لائن سے شروع ہو کر ایوب چوک، آدھیوال چوک، جنگ سٹی، تانگا اڈا، محلہ بھمبڑانہ، مجاہد چوک، گوجرا روڈ سے پولیس لائن پر اختتام پذیر ہوا۔ اس کے علاوہ احمد پور سیال سرکل اور شورکوٹ سرکلز میں فلیگ مارچ متعلقہ ڈی ایس پیز کی زیر قیادت کیا گیا۔ ڈی پی او جنگ حسن اسد الوی کا کہنا تھا کہ پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ فلیگ مارچ کا مقصد ضلع میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا اور شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے تاکہ کرمنل اور شرپسند عناصر کی حوصلہ شکنی ہو اور ضلع کا امن برقرار رہے۔ ڈی پی او جنگ کا مزید کہنا تھا کہ امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور قانون شکن عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ کوئی بھی عناصر نقص امن پیدا کرنے اور قانون کو ہاتھ میں لینے سے باز رہے۔ افسران اور ملازمین اپنی ڈیوٹی الرٹ ہو کر احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ ڈیوٹی میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ معروف قانوندان اور سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن منڈی بہاؤالدین محمود پرویز رانجھا نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے اپنے ڈرائیور سمیت جاں بحق، جبکہ ان کا بیٹا اور راہگیر خاتون 1 سالہ بچے سمیت شدید زخمی اور ڈیڈ باڈیز کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پھالیاں منتقل کر دیا گیا۔ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار منڈی بہاؤالدین محمود پرویز رانجھا نے اپنے بیٹے دانیال اور ڈرائیور کے ہمراہ منڈی بہاؤالدین سے اپنے گاؤں لاکھا قدر جا رہے تھے کہ تھانہ قادر آباد کے علاقے ہمبڑ کے قریب گھات لگائے ہوئے نامعلوم ملزمان نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں محمود پرویز رانجھا ایڈوکیٹ اپنے بیٹے دانیال پرویز رانجھا اور ڈرائیور سمیت شدید زخمی۔ محمود پرویز رانجھا اور ان کا ڈرائیور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے، جبکہ بیٹے دانیال کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پھالیاں منتقل کیا گیا، جہاں سے اسے تشویشناک حالت کے پیش نظر لاہور ریفر کر دیا گیا۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک راہگیر خاتون اور اس کا 1 سالہ بچہ بھی زخمی۔ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ اس افسوسناک واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈی پی او منڈی بہاؤالدین انور سعید کنگرا بھاری نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہماری سی1 نیوز کے ڈویژنل بیورو چیف زین شبیر سے۔ ساہیوال تحریک جوانان پاکستان ساہیوال ڈویژن کے زیر اہتمام پاک فوج زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ڈویژنل صدر ظفر اقبال نے کی۔ ان کے ساتھ ڈویژنل آرگنائزر سمیع اللہ آصف، نائب صدر لیاقت علی، جنرل سیکریٹری فیصل ندیم، سٹی صدر آکاشا خالد، ضلع انفارمیشن سیکریٹری شہزاد کاشف الخیری اور سٹی صدر مار خور ونگ چودھری علی جاوید صاحب، ضلع جنرل سیکریٹری عدنان صاحب، ڈویژنل جنرل سیکریٹری مارخور ونگ شاہد اقبال، ڈویژنل صدر FNW محترم جناب ندیم رحمانی صاحب، زین شبیر صاحب اور دیگر دوست بھی موجود تھے۔ ریلی غوری چوک سے شروع ہوئی اور مزدور پولی پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج زندہ باد اور پاک فوج سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگے۔ ڈنگا سے خبر شامل کرتے ہیں شبیر تو دیکھے گا۔ ڈنگا بھلیسراوالا ڈیرہ سائیں فرمان گجر اور زیر اہتمام گجر اخوت ٹرسٹ شہادت مولا علی علیہ السلام کی شہادت پر سالانہ دسترخوان مولا علی علیہ السلام سجایا گیا، جس میں معززین علاقہ کی موجودگی میں غریب غربا اور مساکین مستحق افراد میں راشن کی بجائے عید پیکج رقم تقسیم کی گئی۔ افطار ڈنر دیا گیا۔ خصوصی شرکت سابق ناظم کاف لیگ تحصیل کھاریاں کے جنرل سیکریٹری چودھری اخلاق احمد رنیا وفد کے ہمراہ سید آصف شاہ گیلانی، چودھری زمان گجر، چودھری مشتاق گجر، چودھری اسلم گجر، چودھری اکرم گجر، چودھری نواز گجر، چودھری سجاد گجر، چودھری الیاس گجر، چودھری اصغر گجر، مسور گجر،
चौधरी तसव्वुर गुज्जर, चौधरी दिलावर गुज्जर, चौधरी हाशिम गुज्जर, चौधरी हैदर गुज्जर, चौधरी राशिद गुज्जर, चौधरी इकराम गुज्जर, चौधरी इमरान गुज्जर, चौधरी एहसान गुज्जर, चौधरी कमर गुज्जर, चौधरी शाहिद इमरान गुज्जर, चौधरी मुशाहिद अदनान गुज्जर, चौधरी अनवर गुज्जर, चौधरी अफजल गुज्जर, खटाना बिरादरान भलेसरावाला, चौधरी यूनस मेंबर, अतम चौधरी, इमरान गोरसी, अतम चौधरी, कमर अब्बास गोरसी, अतम चौधरी, आकिब गोरसी, चौधरी कैसर अब्बास जाफरी एडवोकेट, अमरा खुर्द, चौधरी अली निसार महराना, अमरा खुर्द, चौधरी खुरम जाफर खोड़ी, आलम चौधरी, ईसा चौधरी, बाबर चीमा चौधरी, फैसल चीमा चौधरी, सफदर मेहर, आरिफ मेहर, चौधरी आसिफ मेहर, चौधरी आजम मेहर, चौधरी निसार अहमद, गुलाम रब्बानी छावड़ी, चौधरी निसार अहमद, चौधरी फैसल गरमालिया, डॉक्टर अल्ताफ हुसैन बट, मोहम्मद रियाज पारिया, अजीज़ कश्मीरी, चौधरी जावेद चीची, मोहम्मद आजम आवान, मोहम्मद इसहाक भट्टी, मोहम्मद अरशद उर्फ अच्छी, बशीर आराई, मुंशी मोहम्मद आजम आराई, मियाँ गुलाम रसूल साई, फारूक भट्टी, लतीफ़ भट्टी, खुसूसी ताउन, चौधरी मसूर गुज्जर फ्रॉम मलेशिया, जाहिद हनीफ, रोमियो जट फ्रॉम हॉलैंड, सैयद मुबीन शराजी ऑफ डिंगा, चौधरी इमरान गुज्जर फ्रॉम अबूधाबी, इजहार स्पास गुज्जर, अखुवत इंटरनेशनल ट्रस्ट रिटायर्ड ग्रुप ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कवरेज C1 न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ सैयद शबीर हुसैन शाह ने सर अंजाम दे। खबर शामिल करते हैं जंग से हमारी C1 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर से। मोहम्मद अहमद शहजाद मलिक का कहना है कि 3 दिन पहले मुझसे जो ज़बरदस्ती वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा कर मेरे ही खिलाफ चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जंग की सरजमीन से खतरनाक उभरने वाले छोटू गैंग के नाम से अपना तारुफ करवाने वाले जंग डिवीज़न बनाओ का जाली नारा लगाने वाले शेर बहादुर नूल और मुजम्मिल नूल ने अपने गैंग के साथ मुझे पाम वॉलॉस गेट नंबर 1 से उठाकर अपने दफ्तर ले गए, जहां मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते हुए इसलिए के जोर पर मुझसे ज़बरदस्ती वीडियो बयान लिया और एक खाली पेपर पर तहरीर उसने खुद लिख कर और नीचे 1,65,000 के इसलिए के जोर पर ज़बरदस्ती साइन करवाए और हर माह 1 लाख रुपए भत्ता वसूल करने के भी साइन करवाए गए। मजीद अगले चंद दिनों में बड़े इंकशाफ सामने आ गए और इंशाल्लाह जो उसने लड़कियों का गैंग बनाया हुआ है जिनके जरिए लोगों को ब्लैकमेल करता है वो भी मंजर आम पर लाएंगे। खबर शामिल करते हैं इकबाल के शहर सियालकोट से। कोटली लोहारा मशरकी आवाम के लिए मसाइल की इमाजगाह बन गया। सफाई के नाक़िस इंतजामात, ताफुन और वबाई अमराज फैलने का शदीद अंदेशा। टाउन कमेटी कोटली लोहारा मशरकी सियालकोट मसाइल की इमाजगाह बन गया। सेहत और सफाई की नाक़िस अबतर सूरत हाल हो चुकी। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा राना आफ्ताब से। जी राना आफ्ताब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटली लोहारा में मौजूद हूँ जहाँ पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि कई अरसा से इलाके में सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है। कूड़ा क्रिकेट के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं जिससे वबाई अमराज और ताफन फैलने का शदीद इंतशार ज़ाहिर किया जा रहा है। अहले इलाका का कहना है कि अमला गफलत बरतने में मसरूफ़ और कई दिन कूड़ा क्रिकेट गलियों में बिखरा पड़ा रहता है। शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। अहले इलाका टाउन कमेटी के अहदेदारान से मुतालबा करती है कि इलाके में सफाई का मुनासब और रोज़ाना की बुनियाद पर इंतज़ाम करके इलाके के लोगों पर एहसान करें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा राना आफ्ताब हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से हमारी C1 न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक से। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा आसमा एजाज चीमा की सरबराही में रिश्वतखोर मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन जारी। तसव्वुर हयात वल्द अली मोहम्मद साकिन ढल तहसील और ज़िला भेरा ने बाकी मुलजिमान के साथ मिली भगत करके मोजा ढल में मुख्तलिफ रोड्स की तामीर में 11,13,927 रुपये खुर्द बुर्द करके ख़जाना सरकार को नुकसान पहुँचाया गया था, जिस पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा नंबर 53/2009 थाना एंटी करप्शन सरगोदा में दर्ज हुआ था। दौरान तफ्तीश मुलजिमान अपनी बेगुनाही साबित न कर सका। स्पेशल एंटी करप्शन अदालत में एंटी करप्शन सरगोदा की प्रोसिक्यूशन टीम ने मुकदमे की मुकम्मल पैरवी की और अपने गवाहान के बयानात दिलवाए। अदालत में भी मुलजिम तसव्वुर हयात चेयरमैन CCB अपनी बेगुनाही साबित न कर सका, जिस पर स्पेशल जज एंटी करप्शन सरगोदा ने मुलजिम तसव्वुर हयात चेयरमैन CCB को दफ़ा 409 में 5 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने और दफ़ा
47(2)(5) में 2 साल कैद की सजा सुनाई। मुलजिम ने अदालत आलिया लाहौर में स्पेशल जज एंटी करप्शन सरगोदा के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिस पर अदालत आलिया ने समाअत के बाद मुलजिम तसव्वुर हयात चेयरमैन CCB को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जिस पर मुलजिम को मोहम्मद अकरम सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन सरगोदा की टीम ने गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक, शाहीनों का शहर सरगोदा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा। सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सरगोदा डॉक्टर रिजवान अहमद खान की हिदायत पर जिला भर में क्रैकडाउन जारी। IG पंजाब लाहौर राव सरदार अली खान RPO सरगोदा रीजन मोहम्मद फैसल राना के अहकामात की रोशनी में जुर्म पेश नासिर के खिलाफ ग्रैंड कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट भर में मंशियात फरोश, पर्ची, जुआ, चोर, डकैत, इश्तिहारी, नाजायज़ असला, दीगर जुराइम में मुलविस अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। DPO सरगोदा डॉक्टर रिजवान अहमद ने सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक मोहम्मद हारिस के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए हैं। सहर अफ्तार के औकात में पेट्रोलिंग, मोबाइल और मुहाफ़िज स्क्वाड मौसर गश्त कर रहे हैं। अवाम उन्नास की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने, समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए ज़िला भर के SDPOs की सरबराही में SHOs समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ एक्शन जारी है। DPO डॉक्टर रिजवान अहमद खान की तैनाती से जुराइम पेशा गैंग इलाका छोड़कर रफू चक्कर हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस शेख के साथ सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक, शाहीनों का शहर सरगोदा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा यासिर महमूद से। बरोज़ पीर 23 रमज़ानुल मुबारक 25/4/2022 साहिवाल में हर साल की तरह इस बार भी सर्किट हाउस लाहौर बाईपास रोड साहिवाल में अखुवत की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत डॉक्टर अमजद साकिब साहब चेयरमैन रऊफ़ अखुवत कर रहे हैं और जिसकी सदारत मोहम्मद सईद भट्टी साहब पाकिस्तान की सियासी और समाजी शख्सियत शिरकत कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी मोहम्मद अवैस मलिक, डिप्टी कमिश्नर साहब, DPO सादिक बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मियां बिशारत साहब ने की। मुल्क भर की तरह डिग्री में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मरकज़ी इमाम बारगाह बाबुल इल्म डिग्री में मजलिस आज़ाद से खिताब करते हुए अलामा अली जवाद मुहम्मदी ऑफ कराची ने फ़लसफ़ा शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली। 19 रमज़ानुल मुबारक को वक्त सहर सजदा माबूद में जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन की पेशानी खून में गलता हुई, खुदा के मोतमिद और रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन फरिश्तों के अमीर जंग अहद में लाफ्ती अला अली ला सेफ अला जुल्फ़िकार का नारा बुलंद करने वाले जिब्राइल ने तड़प कर आवाज़ बुलंद की थी और खुदा की कसम अरकान हिदायत मुनहदम हो गए और मस्जिद कूफा में जब सारे मुसलमान अपने इमाम और पेशवा के गम में नोहा और मातम करने में मसरूफ़ थे, खुदा का मुखलिस बंदा अपने माबूद से मुलाकात का इश्तियाक लिए आवाज़ दे रहा था। रब काबा की कसम में कामयाब हो गया और अली अलैहिस्सलाम आज भी कामयाब हैं, क्योंकि उनके सीरत, उनका किरदार, उनके अक़वाल और इरशादात, उनकी हयात और शहादत का एक एक पहलू ना सिर्फ आलिम इस्लाम बल्कि आलिम बशरियत की कामयाबी और कामरानी की ज़मानत समझा जाता है। यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौके पर अज़ादारी मातमी, मरकज़ी जंजीर ज़नी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह बाबुल इल्म डिग्री के सरपरस्त आला सैयद नवीद शाह की सरबराही में मरकज़ी इमाम बारगाह बाबुल इल्म से बरामद हुआ और मुकर्रर रास्तों से गुजर कर टंडो गुलाम अली रोड बुखारी डेकोरेशन पर लंगर न्याज का एहतमाम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और अंजुमन अली सज्जाद अलैहिस्सलाम की जानिब से किया गया। टंडो गुलाम अली रोड महाजिर मस्जिद मेन रोड पर जहाँ अज़ादारों ने जंजीर ज़नी की, जुलूस में सिंध की मशहूर व मारूफ अंजुमन अली सज्जाद अलैहिस्सलाम ने नोहा खानी की। मरकज़ी अज़ादारी मातमी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह बाबुल इल्म जाकर एहतमाम पजीर हुआ। मरकज़ी इमाम बारगाह बाबुल इल्म डिग्री में सहरे का एहतमाम अंजुमन अली सज्जाद अलैहिस्सलाम की जानिब से किया गया था। यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी इंतज़ामात नहीं किए गए, जबकि जुलूस के गुजरने वाले रास्तों में रोशनी और सफाई के इंतज़ामात ना होने के बराबर थे, जबकि हेस्को वापडा की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जुलूस को अंधेरे में रास्तों से गुजरना पड़ा। डिग्री पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए। सिक्योरिटी की निगरानी DSP डिग्री मीर आफ्ताब तालपुर और SHO डिग्री आफ्ताब रिंद कर रहे थे।
खबर शामिल करते हैं शोरकोट से हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद जाहिद सरोही से। डीपीओ झंग हसन असद अलवी की हिदायत पर झंग पुलिस का अमन व अमान के क़याम के लिए फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। डीपीओ झंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग हसन असद अलवी की हिदायत पर बसिलसिला यौम शहादत हज़रत अली 21 रमज़ानुल मुबारक अमन व अमान और सिक्योरिटी के हवाले से झंग पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का आगाज़ उस्मान मुनीर सैफी SP इन्वेस्टिगेशन झंग की ज़ेर क़यादत पुलिस लाइन्स झंग से किया गया। फ्लैग मार्च में DSP SDPO सिटी सदर सर्कल, DSP ट्रैफिक झंग, जुमला SHOs सिटी सर्कल, एलीट फोर्स शाहीन स्क्वाड और रेस्क्यू शरीक हुए। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर अयूब चौक, आधेवाल चौक, जंग सिटी, तांगा अड्डा, मोहल्ला भंबड़ाना, मुजाहिद चौक, गोजरा रोड से पुलिस लाइन पर एहतमाम पजीर हुआ। इसके अलावा अहमदपुर सियाल सर्कल और शोरकोट सर्कल्स में फ्लैग मार्च मुतालिका DSPs की ज़ेर क़यादत किया गया। DPO झंग हसन असद अलवी का कहना था कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम्मा वक्त कोशां हैं। फ्लैग मार्च का मकसद ज़िले में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है ताकि क्रिमिनल और शरपसंद अनासिर की हौसला शिकनी हो और ज़िले का अमन बरकरार रहे। DPO झंग का मज़ीद कहना था कि अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और कानून शिकन अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कोई भी अनासिर नुक्स अमन पैदा करने और कानून को हाथ में लेने से बाज रहे। अफसरान और मुलाजमीन अपनी ड्यूटी अलर्ट होकर एहसन तरीके से सर अंजाम दें। ड्यूटी में किसी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से हैदराबाद में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। हैदराबाद से हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा मानी पठान की रिपोर्ट के मुताबिक पाक सरजमीन पार्टी के डिवीज़न मेंबर रईस राजा खान और मतीन खान, सचल सरमस्त, मेहर अली सोसाइटी, आलम टाउन, UC 98 के इंचार्ज सलमान वटू और अरकान UC कमेटी ने इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया। इफ्तार पार्टी में पाक सरजमीन पार्टी के सदर नदीम काजी और सीनियर नायब सदर शुएब जाफरी ने, डिवीज़न कमेटी और कारकुनान के हमरा ने शिरकत की। इफ्तार से कबल पाक सरजमीन पार्टी सदर अनीस कायम खानी और पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल की उम्र दराजी के लिए दुआ करवाई गई। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद जाहिद सरोही से। शोरकोट और कैंट में ईद करीब आते ही शोरकोट में भिखारियों की भरमार। तहसील चौक, लाड़ी अड्डा, बाजार, गली मोहल्लों में भिखारियों की बड़ी तादाद मौजूद। भिखारियों की वजह से शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला। भिखारी मांगने के बहाने घरों और दुकानों में घुसकर चीज़ें चुरा लेते हैं। शहरियों का मौक़िफ़, भिखारियों में बड़ी तादाद में ख़वातीन, मर्द और बच्चे भी शामिल हैं। तहसील इंतज़ामिया फौरी भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।